Hello student, I am Neha Miglani. Today I am going to cover the topic of methods of measurement of elasticity, part 2. Part 2 means it is my second video of these methods. In my first video, I have already discussed the topics of methods of measurement of elasticity, and the first method to measure the elasticity of demand, that is percentage or proportionate method. In my today video, I am going to discuss the second method to measure the price elasticity of demand. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Vagar Education Hub, and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Vagar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. Methods of measurement of elasticity. In these methods, we have discussed that how to measure the elasticity of demand. This is given by Alfred Marshall. According to these methods, we discuss how much the quantity demand will change as change in the other factors. Other factors may be price of the commodity, maybe income of the consumer, maybe price of the related goods. So according to this, there are 5 methods of measurement of elasticity. First one is percentage method or proportionate method. Second, total outlay method or total expenditure method or total revenue method. Third, geometric method or point method. And fourth, arc elasticity of demand. And fifth one is the revenue method. The percentage method or proportionate method I have already discussed in my previous videos. Just go through to these videos, and this method is given by Alfred Marshall. Now come to our next method, that is our total outlay or expenditure method. This method is also called total revenue method. It means it has 3 names. First one is total outlay method, second name is total expenditure method, and third one is total revenue method. This method is also given by Dr. Alfred Marshall. Dr. Alfred Marshall has given the proportionate and percentage method and also given the revenue or total expenditure method. According to this method, he says that this method is applied when we have knowledge about the resulted change in total expenditure. ये मेथड तभी ही एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास इसकी नॉलेज हो कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइसेस में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर की एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है. ऑब्वियसली जब किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ रही है या कम हो रही है तो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो भी बढ़ते हैं, कम होते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्स वन ही होता है. जितनी हम इनकम पहले ले रहे होते हैं उतनी ही इनकम अब भी ले रहे हैं. अब बट अगर प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं तो हमें तो वो कमोडिटी चाहिए, तो हमारे एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, उसके ऊपर ये मेथड डिपेंड करता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कि हमारे प्राइसेस बढ़ने या कम होने से हमारे एक्सपेंडिचर के ऊपर कितना असर होता है, उसके थ्रू हम एलास्टिसिटी मेज़र करते हैं. This method is applied when we have knowledge about the resultant change in total expenditure due to change in the price of the commodity beforehand. ये मेथड तभी ही एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास प्राइसेस गिवन हो, ठीक है, उसके थ्रू, और हम क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमारे पास गिवन हो, तब हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं. सो इन दिस मेथड द चेंज इन द प्राइस एंड द सब्सिक्वेंट चेंज इन द टोटल आउटले ऑन द परचेज ऑफ द कमोडिटी इज कंपेयर्ड. फिर हम इसमें जो है कंपैरिजन करते हैं प्राइसेस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ, तब हम देखते हैं कि कितनी इलास्टिसिटी आती है. So in shorthand,
जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के लिए प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी जो है वो हमारे पास गिवन होनी चाहिए कि प्राइसेस के बढ़ने या कम होने से हमारे एक्सपेंडिचर के ऊपर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि हम प्राइसेस के बढ़ने या कम होने पे हम कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो भी कम ज़्यादा करते हैं। तो उन दोनों के रिलेशन के साथ हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आता है, कम होता है कि बढ़ता है, उस चीज़ को हम मेज़र करते हैं, जिसके थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेज़र की जाएगी। सो कम टू द फॉर्मूला ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, TO इज इक्वल टू TQ मल्टीप्लाई बाय P. According to this, TO stand for total outlay and TQ stand for total quantity and P stand for price of the commodity. So according to this formula हमारे पास जो है टोटल आउटले मीन्स हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर। उसके बाद हम इसको एक जो है इसमें जो हम जो है 3 प्रपोजिशंस देख के चलते हैं। 3 प्रपोजिशंस कौन सी होती है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। There are 3 propositions in the elasticity in total outlay method. तो 3 propositions क्या हैं? पहली प्रपोजिशन है लेस देन यूनिटरी, जिसको हम EP लेस देन 1 डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन एलास्टिक। इन एलास्टिक मतलब नो चेंज, एलास्टिक मतलब चेंज, यूनिटरी इलास्टिक मतलब चेंज बट इक्वल टू यूनिटी। क्लियर। मतलब आपको जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या यूनिटी है, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, नो चेंज। इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में समझना है कि क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, नो चेंज, मतलब चेंज हो इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा, कोई एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज करेगा, मतलब सेम पॉजिटिव रिलेशन में जाते हैं वो। इलास्टिक का यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव रिलेशन बट इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है, या फिर नो चेंज होगा। बट इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज बट इन ए ऑपोजिट मैनर, चेंज बट इन ए ऑपोजिट मैनर, ठीक है। ऑपोजिट मैनर का मतलब क्या होता है कि एक फैक्टर चेंज हो रहा है तो दूसरा फैक्टर इनवर्स रिलेशन में शो करे, ठीक है। तो मैं इसको एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एग्ज़ाम में जो है हमसे बहुत कुछ पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ों में हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इन इलास्टिक का मतलब क्या है, इलास्टिक का मतलब क्या है, इन इलास्टिक क्या होता है। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास एक फैक्टर, 2 फैक्टर का रिलेशन हम देखते हैं, चाहे वो प्राइस हो चाहे डिमांड हो, चाहे वो प्राइस हो चाहे वो एक्सपेंडिचर क्यों ना हो, वो फैक्टर्स में चेंज कैसा होगा। इन इलास्टिक पहले हम देखेंगे। इन इलास्टिक मतलब पॉजिटिव चेंज, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चेंज। नेगेटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज मतलब 1 फैक्टर इंक्रीजेस then second factor also increases, 1 factor decreases then second factor maybe price decreases then second factor, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो आपकी एक्सपेंडिचर क्यों ना, दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव रिलेशन, एक की प्राइस एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज करेगा, एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा फैक्टर भी डिक्रीज करेगा, उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक। चेंज है बट वो पॉजिटिव चेंज है। क्लियर। प्राइसेस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, प्राइसेस कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, वो इन इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चेंज, चेंज है बट इन ए नेगेटिव वे में चेंज है। एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है, वो मे भी प्राइस हो सकती है या डिमांड हो सकती है या प्राइस हो सकती है या सप्लाई हो सकती है या एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव चेंज को हम बोलते हैं इलास्टिक चेंज, इलास्टिक, और पॉजिटिव चेंज को हम इन इलास्टिक बोलते हैं। यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, 1 फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज, दूसरा जो है नो चेंज दिखाए, कोई चेंज उसमें नहीं आ रहा है,
क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। इलास्टिक क्या है, इन इलास्टिक क्या है, इलास्टिक क्या है और यूनिटरी क्या है। अब हम उसको कंसीडर करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में थ्री प्रपोजिशंस कौन सी आती हैं। बस थ्री प्रपोजिशंस कौन कौन सी हैं। पहली प्रपोजिशंस है हमारे पास इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। प्राइसेस आपके इंक्रीज कर रहे हैं, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज करेगा। इन इलास्टिक में हमने ये चीज देखा है, पॉजिटिव चेंज। एक चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा फैक्टर भी आपका इंक्रीज करेगा। अगर प्राइसेस आपके डिक्रीज कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका डिक्रीज करेगा। ये पहली प्रपोजिशन इसकी आ जाती है कि लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। सेकंड प्रपोजिशन है यूनिटरी इलास्टिक विच इज कंसीडर एज ईपी इज इक्वल टू 1। मतलब प्राइसेस आपके चाहे इंक्रीज करें बट टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चाहे प्राइसेस आपके डिक्रीज करें तब भी आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड प्रपोजिशन आ जाती है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, जिसको हम ईपी ग्रेटर देन 1 और इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक मतलब प्राइसेस आपका वन फैक्टर आपका इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, वन फैक्टर जो है डिक्रीज करेगा दूसरा इंक्रीज करेगा, मतलब नेगेटिव रिलेशन में जब आ जाते हैं। तो प्राइसेस आपके अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका डिक्रीज करेगा, प्राइसेस आपके डिक्रीज करें तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज करेगा। क्लियर? सो देयर आर थ्री प्रपोजिशंस अंडर दिस मेथड। फॉर्मूला इज दैट टोटल आउटले इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। मतलब आपको एक्सपेंडिचर पता करने के लिए आपके पास क्वांटिटी डिमांड का पता होना चाहिए और प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। बट टोटल एक्सपेंडिचर की हमारे पास थ्री जो है प्रपोजिशंस होती हैं, थ्री प्रपोजिशंस होती हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर? इसको अब हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है हमारी। So it is we can also explain with the help of the example. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हम तीन जो है हमारे जो टेबल को तीन पार्ट्स में जस्ट स्टेजेस में हम कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। क्लियर? प्राइसेस में हम सेम चेंज दिखाएंगे, तीनों फैक्टर्स में। प्राइसेस जो कमोडिटी की फर्स्ट स्टेज में हम तीन कंडीशंस लेंगे, सेकंड में भी तीन कंडीशंस लेंगे, थर्ड में भी हम तीन कंडीशंस लेके चलेंगे। फर्स्ट में हमने प्राइसेस दिखाई है, पहले 5 रुपये थी, फिर प्राइसेस कम हो गई 2 रुपये 50 पैसे हो गई, फिर प्राइसेस फिर से कम हो गई 1 रुपये 25 पैसे रहेगी। सेकंड स्टेज में भी सेम प्राइसेस लेंगे, थर्ड स्टेज में भी हम सेम प्राइसेस लेंगे। ठीक है, हमने तीन प्रपोजिशंस दिखानी है इसमें। तो डिमांड अब हम किस में चेंज दिखाएंगे, डिमांड में चेंज में दिखाएंगे कि डिमांड किस हिसाब से चेंज होती है कि ताकि टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा 3 स्टेजेस में कन्वर्ट हो। तो पहली स्टेज में हमने डिमांड में क्या चेंज दिखाया, देखो पहली स्टेज में प्राइसेस जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, 5 रुपये थी कम हो गई 2 रुपये 50 हो गई, उससे कम हो गए 1 रुपये 25 पैसे रहेगी। फिर डिमांड में क्या चेंज आया, प्राइसेस कम होगी, डिमांड तो इंक्रीज करेगी बट किस हिसाब से इंक्रीज करेगी। 5 रुपये में आप जो डिमांड कर रहे थे 1000 यूनिट की, फिर 2 रुपये 50 पैसे हुए तो आपने डिमांड कर दी 2000 यूनिट की, प्राइसेस फिर से कम हुई, फिर आपने 4000 यूनिट की डिमांड की। अब टोटल एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड। 5 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1000 5000 हो गया, 2.50 मल्टीप्लाई बाय 2000 5000 हो गया, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 4000 5000 हो गया। फॉर्मूला हमने टोटल एक्सपेंडिचर का लिया है इसमें। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या हमने पढ़ा है, डिमांड मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो वही हमने किया है। डिमांड को मल्टीप्लाई बाय प्राइस के साथ किया तो 5000 5000 5000 आया। तो एलास्टिसिटी में क्या आ गई, ईडी इज इक्वल टू 1, पहली प्रपोजिशन आ गई। नेक्स्ट सेकंड प्रपोजिशन अब हम देखेंगे। सेकंड प्रपोजिशन में हमने क्या देखा है, प्राइसेस हमने सेम लिए तीनों में स्टेजेस में। अब डिमांड किस हिसाब से बढ़ाई है, इसमें भी डिमांड बढ़ानी है। जो हमारी मेन कंडीशन है कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम होती है जब बढ़ती है, जब प्राइसेस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, वो सेम रहेगी बट किसी प्रोपोर्शन में हमने बढ़ानी कम करनी है, वो हमने इस चीज़ को शो करने के लिए करनी है। ठीक है, तो 5 रुपये में 1000 यूनिट की डिमांड हुई, 2 रुपये 50 पैसे में
3000 यूनिट की डिमांड हुई, 1 रुपये 25 पैसे पे 7000 यूनिट की डिमांड हुई। फिर टोटल एक्सपेंडिचर हमने निकाला मल्टीप्लाई करके, 5 रुपये 1000 मल्टीप्लाई 5000, फिर 7500, देन 8750 रुपीज़। इसमें हमने क्या देखा है, हमारी जो डिमांड है, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर है, प्राइसेस हमारे कम हो रहे हैं, डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है। तो क्या चीज़ आ गई, ग्रेटर देन, मतलब एलास्टिक डिमांड। एलास्टिक में हमने ये चीज़ देखी है, प्राइसेस आपकी कम हो रही है बट आपका एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज एलास्टिक। नाउ कम टू द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में सेम प्राइसेस, डिमांड हमने उस हिसाब से बढ़ाई है ताकि हम इस चीज़ को शो कर सके। इसमें हमने क्या देखा है, प्राइसेस कम हो रही है, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर, समझ आ गया है। इसमें हमने क्या देखा है, हमारा टेबल हम इस तरीके से फॉर्मेट करेंगे, डिमांड में हम इस तरीके से चेंज दिखाएंगे कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 3 स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाए, इक्वल यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी। कंडीशंस आर सेम। प्राइसेस के पहली कंडीशन में हमने क्या देखा है, प्राइसेस के बढ़ने या कम होने से आपके टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज आए। उसके सेकंड कंडीशन क्या देखा है, प्राइसेस के कम होने से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो वो ग्रेटर देन यूनिटरी आ गया। प्राइसेस के कम होने से आपका एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, तो वो लेस देन यूनिटरी आ गया है। सो देयर इज 3 prepositions अंडर अवर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ कम टू द डायग्राम। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम में हमने क्या देखा है, हमारा जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है वो किस हिसाब से आता है, इस फॉर्म में, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जो कर्व है वो हमारा इस फॉर्म में आएगा। क्लियर, इस फॉर्म में कैसे आएगा, इसको मैं आपको एक लाइव वीडियो के थ्रू एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। डायग्राम में हम देखेंगे, आपको यहाँ पे हम प्राइसेस लेते हैं, वो तो हमें पता ही है, प्राइसेस आपकी एक ही साइड पे आएगी। यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांड लेते थे, तो क्वांटिटी डिमांड की जगह पे अब हम लेंगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपका कर्व किस शेप में होगा, इस शेप में, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट, इनको हम ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। इसको भी ज्वाइंट कर लेंगे, ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा B1 पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा ED ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ED इक्वल टू 1, यहाँ पे ED लेस देन 1। ये कैसे होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारी प्राइसेस इतनी थी और एक्सपेंडिचर हमारा इतना था। प्राइसेस हमारे कम हुए P1 को, हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया है, पहले इतना था फिर एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो ये ग्रेटर देन की स्टेज। ग्रेटर देन में क्या होता है, हमारा एलास्टिक को होता है, ठीक है। ग्रेटर देन में हम क्या देखते हैं, सॉरी इन एलास्टिक, एलास्टिक चेंज। इलास्टिक में हमने क्या देखा है, नेगेटिव चेंज। अब इस स्टेज में देखा है प्राइसेस आपके और कम हो गए, प्राइसेस आपके और कम हो गए, बट आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहता है, तो ED इज इक्वल टू 1 यूनिटरी आ गया। अब थर्ड स्टेज में देखो, प्राइसेस आपका और कम हो गया P4 में, तब आपका एक्सपेंडिचर इतना था, प्राइसेस आपका और कम हो गया P5 से चला गया, तब आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गया, ठीक है। प्राइसेस कम हुई, एक्सपेंडिचर आपका कम हुआ, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चेंज, तो दैट इज कॉल्ड इन एलास्टिक लेस देन यूनिटरी। क्लियर, यहाँ पे प्राइसेस कम हुई, एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइसेस कम हुई थी, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया, तो नेगेटिव चेंज, नेगेटिव में हमारा क्या होता है, एलास्टिक, और प्राइसेस हमारी कम हुई, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ, दैट इज अवर कॉल्ड इन एलास्टिक चेंज।
I hope you will all understand what is our total expenditure method. I have thoroughly explained with the help of diagram, with the help of table, with the help of the formula, with the help of the summary table. So questions are basically many of the questions are being asked from this method, because it has very that MCQs type of terms. So every examiner want to quote some question on this topic also. So go through my this video, and in my next video I will explain the another method of the price elasticity of the demand. Thank you so much.